মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি উফাই দাং মাৰি অৰুণাচল আৰক্ষীৰ জালত গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী ঋষিৰাজ বৰকটকী। হিমন্তৰ নাম ক'লেই যেনেদৰে অসম আৰক্ষীৰ হাত কঁপে, ঠিক তেনেদৰেই অৰুণাচল আৰক্ষীকো অসম আৰক্ষী বুলি ভাবিছিল নেকি ঋষিৰাজ বৰকটকীয়ে, যাৰ বাবে অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ব্যৱসায়ীক ৩৪ কোটি টকা প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ঋষিৰাজ। ১ কোটি ২ কোটি নহয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি দাবী কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ব্যৱসায়ীক গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী লুটিলে ৩৪ কোটি টকা। এইজন হ'ল গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী, নাম ঋষিৰাজ, পিছে চলাই মাথো লুণ্ঠন ৰাজ। ফেচবুক প্ৰফাইলত কাৰ কাৰ সৈতে ফটো নাই এইগৰাকী ঋষিৰাজ বৰকটকীৰ। অফিচাৰ অন স্পেচিয়েল ডিউটি অৰ্থাৎ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্যামকানু মহন্ত, সঞ্জীৱ নাৰায়ণ, ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্ত, এই সকলোবোৰৰ সৈতে ফেচবুকৰ ঘৰত যেন একেবাৰেই আপোন এইগৰাকী ঋষিৰাজ বৰকটকী। লাক্সাৰী গাড়ী, দামী দামী ফোনৰ গৰাকী এইজন ঋষিৰাজ। পিছে এইগৰাকী ঋষিৰাজ এতিয়া ৩৪ কোটিতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ব্যৱসায়িক ভুৱা ইথানল প্ৰকল্পৰ নামত ৩৪ কোটি টকা প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগত ঋষিৰাজ বৰকটকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এফআইআৰ দাখিল হোৱাৰ মাত্ৰ ১৪ দিনৰ ভিতৰতে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গোচৰটোৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অভিযুক্ত ঋষিৰাজ বৰকটকীক ২০ জুনত গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বুলি সোমবাৰে ICR নাহৰলগুনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নিয়েলাম নেগাই জনায়। বিনিয়োগকাৰী ৰাজেশ আগৰৱালে লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰা অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বান্দৰদেৱা থানাত ৫ জুনত এখন গোচৰ ৰুজু কৰা হয়। অভিযোগ অনুসৰি ঋষিৰাজ বৰকটকীয়ে নিজকে এজন প্ৰভাৱশালী ব্যৱসায়ী হিচাপে পৰিচয় দি অসমত প্ৰস্তাৱিত এখন এক্সট্ৰা নেচাৰেল এলকহল অৰ্থাৎ ইথানল উৎপাদন প্ৰকল্পত বিনিয়োগ কৰিবলৈ তেওঁক প্ৰলোভিত কৰিছিল। আৰক্ষীৰ অভিযোগ অনুসৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ব্যৱসায়ী ৰাজেশ আগৰৱালক অসমত এখন ইথানল কাৰখানা স্থাপনৰ সপোন দেখুৱাই প্ৰায় ৪ বছৰৰ ভিতৰত ৩৪ কোটি টকাৰো অধিক ধন আদায় কৰিছিল অভিযুক্তজনে। ये एक बहुत बड़ा हमारा नाहरलगुन पुलिस के लिए और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 34 करोड़ का जो फ्रॉड केस है उसमें हम लोगों ने क्रैक किया, वो भी 14 डेज़ के अंदर में। और इसमें हमारा जो टीम है SI तादा, इंस्पेक्टर देव, SDPO ऋषि लोंगदो आज नहीं है, कुछ अलग काम में ग्राउंड में है, तो सभी इंटायर टीम को उसके साथ में जितना टीम है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसका जो केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है 5/6/2026 को, और उसके साथ में उसको जो अरेस्ट है, जो 21 को अरेस्ट है, वो हम लोगों ने 20 को अरेस्ट किया, 20 ये महीना का 20 को अरेस्ट किया। और जो 21 है ऋषिराज बरकटकी 41 ईयर्स का है, वो है उसका सन ऑफ दिलीप कुमार कटोकी, कामरूप का है, कामरूप असम का है। और जो कंप्लेनेंट है मिस्टर राजेश अग्रवाल है। ये जो केस ऐसा है, जो मिस्टर राजेश अग्रवाल है वो अरुणाचल में बचपन से यहाँ का बिजनेसमैन है। उसका पिताजी यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ पे बिजनेस किया। उसके बाद में बेटा को यहीं पे जन्म दिया, और बेटा फिर बाद में बिजनेस कंटिन्यू करने लगा। और उसके बाद में जो बिजनेस वेंचर आउट करने के लिए अलग एरिया में वेंचर आउट करने के लिए उन्होंने एक एथेनॉल फैक्ट्री खोलने के लिए सोचा। एथेनॉल जो फैक्ट्री खोलने के लिए असम में, कामरूप असम गुवाहाटी एरिया में खोलने के लिए सोचा। और इसके चलते उन्होंने क्या किया कि यहाँ वहाँ से बातचीत करने के बाद उसका जो एक दोस्त के थ्रू से एक आदमी को मिला, उसका नाम है ऋषिराज बरकटकी, और वो कहता है कि हम आपको इथेनॉल फैक्ट्री दिलवाएगा। তদন্তত পোহৰলৈ অহা মতে ঋষিৰাজে নিজকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দি বিভিন্ন চৰকাৰী অনুমোদন সহজে লাভ কৰাই দিব বুলি আশ্বাস দিছিল। অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হোৱা বুলি দাবী কৰা টেক্সট বাৰ্তা দেখুৱাইছিল আৰু ফোনযোগে কথোপকথনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আৰক্ষীৰ মতে প্ৰতাৰণাৰ জাল অধিক বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিবলৈ অভিযুক্তজনে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ নামত জাল নথিপত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। तो इन द मीन टाइम में क्या हुआ कि मिस्टर बरकटकी, मिस्टर ऋषिराज कहता है कि उसका जो है जो प्रोसेस है उसका CM का साथ में तालमेल अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसके बाद CM का साथ में ऑनरेबल CM जो हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा का साथ में जो CM असम का है उसके साथ में तालमेल ठीक ठाक है करके उसका जो उसका मोबाइल नंबर से मैसेज आया वाला, व्हाट्सएप में मैसेज आया वाला दिखाता है। और सिर्फ मैसेज नहीं आता है,
फ़ोन कॉल भी आता है। सबसे हैरानी वाला बात, फ़ोन कॉल भी आने वाला दिखाता है, और फ़ोन कॉल भी ऐसे मिमिक करवाता है कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा साहब खुद ही बात कर रहा है जैसा, ऐसे मिमिक करवाता है। और जो अभी वो इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा कि वो एआई से यूज़ करके किया, ना किसी को लगा के मिमिक करने वाला करने दे के किया एग्जैक्ट। तो उसके बाद में ये जो मिस्टर राजेश जो है वो भरोसा हो जाता है कि ये सीएम साहब का साथ में, ऑनरेबल सीएम आसाम का साथ में तालमेल इसका अच्छा है, तो उन्होंने जो बोलता है मानता है। तो जब इथेनॉल फैक्ट्री सिंस सीएमओ का तरफ ऑफिस से उसको बाद में एट द एंड में सीएम साहब ही उसको अप्रूव करेगा, तो उस ऋषिराज जो है मिस्टर राजेश का दिल को जीत लेता है। तो उसके बाद में आफ्टर जब फाइल प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद में मिस्टर ऋषिराज जो कहता है, राजेश को कहता है कि मेरा कुछ अराउंड 400-500 करोड़ का जो है बिल फंसा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फंसा हुआ है। तो वो अगर उसको निकालने के लिए, जो बिल को है, मेरा बिल को निकालने के लिए हमको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने से ही तभी जाके वो जब क्लियर हो जाएगा, तभी जाके उसके बाद में ही इथेनॉल का ये फैक्ट्री को ही आपका भी अप्रूव करवा देगा। तो सिमिलरली वैसे जैसा ऋषिराज बोलता है, वैसे सीएम, ऑनरेबल सीएम जो का नाम से जो उन लोगों ने जो व्हाट्सएप बनाया है और अकाउंट बनाया है, फ़ोन नंबर बनाया है, उसमें भी मैसेज आता है, मैसेज देता है कि ऋषिराज जो कहा है, ऐसे ही जैसा राजेश को, मिस्टर राजेश को मैसेज आता है कि आप इतना पैसा ये जगह पे, फलाना जगह पे पेमेंट कर दीजिए। उसका कहने का हिसाब से जो वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट फोर्ज करके दिखाता है, अपलोड करता है, उसको मिस्टर राजेश को दिखाता है कि मेरा इतना पैसा मिलना है, और अभी इतना क्लियरेंस हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, कैबिनेट सेक्रेटरी से, अभी ये इसका रिलीज़ हो गया, क्लियरेंस हो गया, अभी पैसा रिलीज़ होगा तो आपको हम पेमेंट कर देगा, तब तक आप पैसा मेरा लिए पेमेंट कर दीजिए। तो वो ऐसे करते करते एक सिंस 2022 का केस है, तो 22 से चला आ रहा है। तो एक बार कभी 20 लाख पेमेंट करता है, कभी 50 लाख पेमेंट करता है, कभी 1 करोड़ पेमेंट करता है। ऐसे करते बाय द टाइम केस 5-6 2026 को हम लोगों को यहाँ जमा करने तब तक वो ऑलरेडी 34 करोड़ 33 लाख 34,373 अकाउंट ट्रांजैक्शन पेमेंट कर चुका होता है। और वो पूरा हम लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ में एफआईआर में उन्होंने सबमिट किया। তদন্তকাৰী সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে কথিত ফোন কলসমূহত এআই সৃষ্ট বা নকল কণ্ঠস্বৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পাৰে। অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তজনৰ পৰা এখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ গাড়ী, 5টা মোবাইল ফোন আৰু আন গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী জব্দ কৰে। জব্দ কৰা এটা মোবাইল ফোন কথিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কণ্ঠস্বৰ নকল কৰি ভুৱা ফোন কল কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বৰ্তমান অভিযুক্তৰ ফোনটো ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অভিযুক্তজনক UPR এখন স্থানীয় আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়, য'ত আদালতে তেওঁক 10 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। নিউজ ৰিপোৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।